Yeah, hello students. Today we are going to discuss about glandular epithelium as we are learning about animal tissues, and in this chapter we have discussed different specialization of epithelial tissue. So, certain epithelial tissue they modify and they start secreting certain chemical, and those epithelial tissue which after modification release certain chemical, those chemical could be hormone or those chemical could be enzymes. Such modified epithelial tissue is referred as to gland. So, today in this lecture first we will be discussing about glands, what are the different types of gland on the basis of method of pouring, that where they are pouring their secretion, on the basis of method of secretion, how the secretion are going outside the cell, and on the basis of branching of duct and branching of secretory portion. So, let me start today's lecture, and we will be starting. The title for today's lecture would be glandular epithelium, right? All right. So, first we will be learning the definition of term gland. What is a gland? आप इस चीज़ को ऐसे समझेंगे कि एपिथेलियल सेल ही मॉडिफाई होकर ग्लैंड बनाता है, द वेरी बेसिक कंसेप्ट। और ऐसा मॉडिफाइड सेल या ऐसा सेल जो बॉडी के केमिकल्स, बॉडीली सिक्रेशन बनाता है, उसको हम ग्लैंड कहते हैं। सो बाय डेफिनेशन अ ग्लैंड वुड बी any cell making bodily secretions, making chemical bodily secretions. Now these chemical body secretions, they could be enzymes, so we will be referring them as digestive gland if they are enzymes, or they could be hormones, we will be calling them as endocrine gland. Those secretion could be sweat, those secretion could be sterol, waxes, we call that oil gland, and so on. So, by basic definition, a gland is a group of cell or a single cell which make bodily secretions or which make certain chemical which has been used in our body for different purpose. Now, this lecture would be mainly based upon the classification of gland, how this glandular epithelium is classified. So, the very basic classification which I am going to start, it would be on the basis of mode of pouring. जब हम pouring वर्ड यूज करते हैं, pour का मतलब होता है कि अपने टारगेट टिश्यू तक जो ग्लैंड है वो अपने सिक्रेशन को कैसे पहुंचा रहा है। टारगेट टिश्यू तक सिक्रेशन वाया डक्ट भी जा सकते हैं और टारगेट टिश्यू तक सिक्रेशन वाया बॉडी फ्लूइड जा सकते हैं, मेनली ब्लड के थ्रू जाएंगे एंड समटाइम्स लिम्फ के थ्रू जाएंगे। सो डिपेंडिंग अपॉन कि वो अपने टारगेट टिश्यू तक अपने सिक्रेशन को कैसे पहुंचा रहा है। अ ग्लैंड माइट बी हैविंग डक्ट, अ ग्लैंड कुड बी विदाउट एनी डक्ट, or a gland might be having mixture of both. So, there are three major type of gland depending upon the mode of pouring. The very basic is exocrine gland, and these exocrine gland are referred as to gland having duct or simply gland with ducts. So, exocrine gland are those gland which are having ducts. These are the one which are having ducts, right? On the second one, those which do not have duct and they pour their secretion to the target tissue via certain body fluid. That body fluid could be your blood, that body fluid could be your lymph. Such ductless gland are referred as to endocrine. So, endocrine would be ductless, and I repeat it once again कि ductless gland जो collection of cell है, जो secretory है, उनका लोकेशन टारगेट टिश्यू से अलग रहता है मेजॉरिटी ऑफ टाइम, अगर पैराक्राइन सिग्नलिंग नहीं है तो, और वो अपने सिक्रेशन को बॉडी फ्लूइड के अंदर मेजरली ब्लड और कुड बी लिम्फ, और वाया ब्लड एंड लिम्फ हो जाता है आपका टारगेट टिश्यू तक। और ऐसे ग्लैंड जिसका कुछ पार्ट एक्सोक्राइन और कुछ पार्ट एंडोक्राइन होता है, उसको बोलते हैं बेटा हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रो जो वर्ड आया है वो डिफरेंट से आया है, तो हेट्रोक्राइन दे आर द मिक्सचर ऑफ बोथ एंडो as well as exo.
ना हमारे जो एग्जाम है उसमें ना कई बार एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि भाई एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल्स कौन से हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल कौन से हैं, और हेटेरोक्राइन ग्लैंड कौन सा होता है। तो मेनली फोकस करूंगा ऑन एग्जाम्पल। जब हम एक्सोक्राइन की बात करते हैं आप सिंपल याद रखेंगे जो आपके एंजाइम प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होती है, लाइक योर सलाइवरी ग्लैंड, योर पैनक्रिएट सलाइवरी ग्लैंड, योर गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये सारी कैसी होती हैं, एक्सोक्राइन। मोर एवर जो आपकी स्वेट ग्लैंड होती हैं वो भी एक्सोक्राइन होती हैं। आपकी जो ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है वो भी एक्सोक्राइन होती है। स्वेट ग्लैंड के लिए दूसरा नाम यूज करते हैं बच्चे सुडोरीफेरस ग्लैंड, सुडोरीफेरस। और जो आपके पास ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड होती है उसका दूसरा नाम होता है सीबेशियस। तो जब हम जिक्र करना शुरू करेंगे, सी अगर मैं आपको एज ए टोटल बताऊं, देयर आर सो मेनी ग्लैंड्स विच आर एक्सोक्राइन, स्टार्टिंग फ्रॉम योर सलाइवरी ग्लैंड, इवन आपके क्रिप्ट ऑफ लिबर कोन भी एक्सोक्राइन हो जाएंगे। आपके पास सारे की सारे स्वेट ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड, ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट नियर टू यूरेथ्रा, पेरीयूरेथ्रल एंड पैरायूरेथ्रल ग्लैंड, इवन जो आपके पास वेस्ट्रिबुलर ग्लैंड होते हैं, चाहे वो काउपस ग्लैंड ही क्यों ना हो, वो सारे एक्सोक्राइन होते हैं। तो आप ऐसा करेंगे कि ऐसे ग्लैंड जो हार्मोन बनाते हैं वो तो एंडोक्राइन हो जाएंगे। हेटेरोक्राइन के हम 2 एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, और बाकी जो आपको याद ना रहे या जो आपको इन जनरल क्लिक ना कर रहा हो तो वो मोस्ट प्रोबेबली एक्सोक्राइन ही होगा। तो एंडोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं बच्चों जो हार्मोन बनाते हैं, दे मेनली प्रोड्यूस हार्मोन। और आपने क्लास 10th में पढ़ा भी होगा, आपके पास जो भी केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट होगा उसमें आपने पूरा एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होगा। तो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कैसी होती है, योर आंसर वुड बी एंडोक्राइन। आपके फॉर एग्जांपल लेट से जो थायराइड होता है वो कैसा होता है, आंसर वुड बी एंडोक्राइन। So on the basis either they are having duct or they are ductless, glands are classified as exocrine and endocrine। और जो तीसरा पढ़ेंगे आप, जो हेटेरोक्राइन होता है वो एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन होता है। और हेटेरोक्राइन में आपको एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल तो याद रखने ही रखने हैं। कौन कौन से 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको? पहला एग्जाम्पल याद रखेंगे आप पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है जिसका कुछ पार्ट एंडोक्राइन होता है और कुछ पार्ट एक्सोक्राइन होता है। हमारे पैनक्रिया का वो पार्ट जो हार्मोन बनाता है उसको बोलते हैं बेटा आइलेट ऑफ लैंगरहन। और जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं वो अपने सिक्रेशन वाया ब्लड भेजते हैं। तो जब मैं एंडोक्राइन का जिक्र करूंगा इसका आंसर हो जाएगा आइलेट ऑफ लैंगरहन। और पैनक्रिया का वो पार्ट जो हार्मोन नहीं बना रहा है, जो डाइजेस्टिव जूस बना रहा है, जिसको बोलते हैं आइलेट ऑफ आइलेट, जिसको हम बोलेंगे पैनक्रिएटिक एसिनाई। तो जो पैनक्रिएटिक एसिनाई होगा, पैनक्रिएटिक एसिनाई, तो पैनक्रिया का वो पार्ट जो डाइजेस्टिव जूस बना रहा है, दैट इज पैनक्रिएटिक एसिनाई, वो कैसा हो जाएगा, एक्सोक्राइन। क्यों, डाइजेस्टिव जूस ड्यूडेनम तक आता है वाया डक्ट। और पैनक्रिया का वो पार्ट जो हार्मोन बना रहा है वो हो जाएगा आपका एंडोक्राइन पार्ट। सेकंड जो एग्जांपल याद रखेंगे इसमें, वो एग्जांपल आप याद रखें गोनेड्स का। हेटेरोक्राइन में सेकंड एग्जांपल इज गोनेड्स। और गोनेड्स बोलते हैं बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को। तो मेल के केस में टेस्टिस और फीमेल के केस में ओवरी, ये दोनों ही हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। अब आप सोच रहे होंगे कि टेस्टिस और ओवरी को हमने हेटेरोक्राइन क्यों बोला है। टेस्टिस का कुछ पार्ट होता है जो गैमेट बनाता है, और जो गैमेट है वो बाहर आते हैं विद द हेल्प ऑफ डक्ट। तो डक्ट सिस्टम जो होगा वासा एफरेंशिया, वासा डेफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा। और कुछ पार्ट होता है जो लेडिक सेल है वो बनाएंगे सेक्स हार्मोन। सिमिलरली ओवरी के अंदर भी जो भी गैमेट वगैरह है वो आता है फैलोपियन ट्यूब से, वो एक्सोक्राइन पार्ट हो गया। और जो भी फॉलिकुलर सेल या कॉर्पस लूटियम है वो हार्मोन बनाएंगे, दैट वुड बी द एंडोक्राइन पार्ट। सो बेसिक क्लासिफिकेशन हेयर हमने क्या पढ़ा कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग जो आपकी ग्लैंड्स हो सकती हैं वो आपकी एक्सोक्राइन हो सकती हैं, वो आपकी एंडोक्राइन हो सकती हैं, वो आपकी हेटेरोक्राइन हो सकती है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है। जो दूसरा हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, दैट वुड बी बेस्ड कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कि भाई जो भी ग्लैंडुलर पोर्शन है, जो सिक्रेटरी पोर्शन है, वो एक सिंगल सेल की मॉडिफिकेशन से बन रहा है या ग्रुप ऑफ सेल मॉडिफाई होकर सेम चीज बना रही है। तो अगर सिंगल सेल सिक्रेशन कर रहा होगा तो वर्ड यूज करेंगे यूनिसेलुलर, और ग्रुप ऑफ सेल मिलके वो सिक्रेशन बना रहा होगा तो वर्ड यूज करेंगे मल्टीसेलुलर। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल ग्लैंड्स कुड बी योर
यूनिसेलुलर ग्लैंड और द ग्लैंड्स कुड बी मल्टीसेलुलर। अब ये वो पार्ट है जो अपनी एनसीईआरटी में विद डायग्राम दिया होगा। एनसीईआरटी वगैरह जब पढ़ेंगे उसमें आपको दो ग्लैंडुलर टिश्यू का डायग्राम दिखेगा। एक आपका होगा सिंगल सेल मॉडिफिकेशन से जो बना है और दूसरा होगा जो ग्रुप ऑफ सेल मॉडिफिकेशन से बना है। तो जब मैं सिंगल सेल मॉडिफिकेशन से आपको बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये कुछ ऐसा होगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये कुछ टॉल सेल्स हैं, और टॉल सेल्स के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, यू बेटर नो दीज आर कॉलमनर एपिथेलियम। और कुछ कॉलमनर एपिथेलियम मॉडिफाई हो गई हैं और मॉडिफाई होकर सिकेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनका जो मॉडिफाइड पार्ट है वो लाइक ए बल्ब दिखता है। इस सेल को बोलते हैं गॉबलेट सेल। और जो गॉबलेट सेल है, नो फन इन टेलिंग, आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर गॉबलेट सेल होगा, वो म्यूकस बना रहा होगा। तो बॉडी के अंदर जो भी म्यूकस फॉर्मिंग सेल होता है वो यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है। तो फर्स्ट एग्जांपल गॉबलेट सेल और म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल। हमारे बॉडी के अंदर, आई रिपीट, जो म्यूकस सेल होता है, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल होता है, वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ना शुरू करेंगे और आप ह्यूमन डाइजेशन में इंटेस्टाइनल ग्लैंड को पढ़ रहे होंगे बच्चों, तो आपने एक सेल का जिक्र करेंगे, वहाँ पे पेनिस सेल। और जो पेनिस सेल होता है ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में, वो भी यूनिसेलुलर ग्लैंड होता है। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड के दो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल वुड बी द गॉबलेट सेल, और जो सेकंड एग्जाम्पल आप याद रखेंगे दैट वुड बी पेनिस सेल। और मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये जो पेनिस सेल हैं ये एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड होती हैं, क्रिप्ट ऑफ लिबर कोन में होती हैं या इंटेस्टाइन में वर्ड यूज करता हूँ, इट इज ए पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने कि अगर सिंगल सेल मॉडिफाई होके केमिकल रिलीज कर रहा है, एक्सिकेशन रिलीज कर रहा है, तो यूनिसेलुलर ग्लैंड होगा। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट। ऑन द अदर हैंड अगर मल्टीसेलुलर का जिक्र करें, मल्टीसेलुलर वुड बी लाइक दिस कि आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल है और इस ग्रुप ऑफ सेल के अंदर देयर आर सो मेनी सेल्स विच आर सिक्रेटरी, और सिक्रेटरी सेल्स के साथ साथ कुछ सपोर्टिंग सेल भी है। देयर आर सर्टेन सेल्स विच आर सपोर्टिंग दी सिक्रेटरी सेल्स, और अब मैं बना देता हूँ कुछ सिक्रेटरी सेल्स इसके अंदर। तो जब ये ग्रुप ऑफ सेल सिकेशन बना रहा होगा, इसके लिए वर्ड यूज करेंगे मल्टीसेलुलर ग्लैंड। और हमारे बॉडी में जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ज्यादातर ग्लैंड मल्टीसेलुलर ही होते हैं। इवन जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो भी मल्टीसेलुलर होता है। तो एक आसान सा कंसेप्ट ये भी होता है कि भाई हमने दो यूनिसेलुलर ग्लैंड के नाम याद कर लिए। कौन कौन से दो यूनिसेलुलर ग्लैंड है? पहला हो गया आपके पास म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल और दूसरा हो गया आपके पास पेनिस सेल। उसके अलावा जितने भी ग्लैंडुलर पार्ट है वो सारा ही कैसा हो गया, मल्टीसेलुलर। वो अपने सिक्रेशन को कुछ ऐसे डिस्चार्ज करता रहेगा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्जांपल ऑफ मल्टीसेलुलर ग्लैंड, आपको याद रखना है स्वेट ग्लैंड्स आर मल्टीसेलुलर, स्लाइवरी ग्लैंड्स आर मल्टीसेलुलर, पैनक्रिएटिक एसिनाई आर मल्टीसेलुलर, क्रिप्ट ऑफ लिबर कोन आर मल्टीसेलुलर। जो भी आपको याद आए उन दो के अलावा वो सारा कहाँ में रख देंगे, मल्टीसेलुलर में। तो एग्जाम्पल में दो चार लिख देता हूँ। इवन आप यू नो डेट जो भी एक्सटर्नल ईयर कैनाल होता है वहाँ पे कुछ वैक्स ग्लैंड होती हैं जो ईयर वैक्स बनाती रहती हैं, वो भी किसके सिक्रेशन होंगे, मल्टीसेलुलर ग्लैंड के। तो कुछ एग्जाम्पल इन मल्टीसेलुलर, आई विल बी कवरिंग द स्लाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एटसेट्रा। तो ऑन ए क्विक रिवीजन क्या क्या पढ़ा अब तक हमने शुरू किया कि भाई हमारे पास ऐसा एपिथेलियल टिश्यू जो मॉडिफाई होके केमिकल्स वगैरह बना रहा है, बॉडीली सिक्रेशन बना रहा है, उसको हम ग्लैंड कहते हैं। अब ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ पोरिंग क्या हो सकता है आपके पास, इट कुड बी योर थ्री टाइप्स कि भाई वो अगर डक्ट से अपने सिक्रेशन को लेके जा रहा है तो वो एक्सोक्राइन हो गया, अगर वो ब्लड के अंदर पोर कर रहा है तो वो एंडोक्राइन हो गया, और कुछ टिश्यू अपने सिक्रेशन को डक्ट से भेज रहे हैं और कुछ टिश्यू अपने सिक्रेशन को ब्लड में लेके आ रहे हैं, तो आपका हेट्रोक्राइन हो गया। हेट्रोक्राइन के दो एग्जाम्पल, फर्स्ट वुड बी पैनक्रिया एंड सेकेंड वुड बी गोनेड। देन अगर सिंगल सेल सिक्रेशन कर रही है तो यूनिसेलुलर ग्लैंड। यूनिसेलुलर ग्लैंड के दो एग्जांपल हमें याद रखने हैं, फर्स्ट वुड बी द गॉबलेट सेल एंड सेकंड वुड बी योर पेनिस सेल। और बाकी जो बचे वो सारे मल्टीसेलुलर। ये बेसिक्स हो गए इस टॉपिक के। अब चलते हैं थोड़े से और हायर कंसेप्ट पे। जब मैं हायर कंसेप्ट की बात करूंगा कि जो भी सिक्रेटरी सेल हैं वो अपने सिक्रेशन को कैसे डिस्चार्ज कर रहे हैं। एक मोड ऑफ डिस्चार्ज ये हो सकता है कि पूरा का पूरा सेल इंटैक्ट है और जो भी केमिकल वगैरह उसके अंदर बन रहे हैं वो डिफ्यूज अवे हो रहे हैं। केस नंबर 1 कि फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल और ये मॉडिफाई होकर ग्लैंड बन गया है, इसके अंदर कुछ केमिकल इकट्ठे होते हैं और बाद में वो डिफ्यूज अवे हो जाते हैं।
केस नंबर 2 होगा कि जो भी केमिकल इकट्ठे हुए हैं वो उसके एपिकल पार्ट पर आएंगे और बाद में सेल का ये एपिकल पार्ट टूट जाएगा, तो ये जो बाकी का सेल है क्या तो ये रीजनरेट हो जाएगा या रिप्लेस हो जाएगा। केस नंबर 3, पूरा का पूरा सेल ही लॉस्ट हो जाएगा एज ए सिक्रेशन। तो जो भी सिक्रेशन है वो कैसे एक्सक्रीट हो रहे हैं, वो कैसे सिक्रेट हो रहे हैं, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट। ऑन बेसिस ऑफ सिक्रेशन, मोड ऑफ सिक्रेशन कैसा है, हम इनको क्लासिफाई करेंगे। द फर्स्ट वुड बी, आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट मीरोक्राइन, और वी कॉल डेट एक्राइन, और कुछ ऑथर आपको इसको इक्राइन भी बोलेंगे। तो इक्राइन और एक्राइन दैट इज सेम। तो मीरोक्राइन ग्लैंड और इक्राइन ग्लैंड, कंसेप्ट को समझे होगा क्या, आपके पास ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और फॉर एग्जांपल ये मॉडिफाइड सेल हैं जो ग्लैंडुलर हो गई हैं। अब इन मॉडिफाइड सेल के अंदर कुछ सिक्रेटरी मटेरियल इकट्ठा हुआ, फॉर एग्जांपल ये सिक्रेटरी मटेरियल जो इकट्ठा हो रहा है, और जब भी सिक्रेटरी मटेरियल सफिशिएंट हो जाएगा या जब कोई स्टिमुलस आएगा, ये सिक्रेटरी मटेरियल है ये डिफ्यूज अवे हो जाता है। तो जो भी सेल है उसका कोई भी पार्ट लॉस्ट नहीं होता है और सिक्रेटरी मटेरियल सिंपली रिलीज होता है, सिंपली डिस्चार्ज होता है बाय डिफ्यूजन। तो अगर डिफ्यूजन से सिक्रेटरी मटेरियल डिस्चार्ज हो जाए और पेरेंट सेल में कोई भी लॉस ना हो, उसको बोलते हैं मीरोक्राइन। तो इसमें दो कंसेप्ट, नो पार्ट ऑफ सेल इज लॉस्ट एज सिक्रेशन, और जो सिक्रेशन है वो कैसे जाते हैं, सिक्रेशन इज रिलीज्ड बाय विच प्रोसेस, योर आंसर वुड बी वाया डिफ्यूजन। ओके, ऐसे ग्लैंड्स जो अपने सिक्रेशन को डिफ्यूजन से भेज रहे हैं और जिनके अंदर कोई भी सेल का पार्ट लॉस नहीं हो रहा है, उनका जो मोड ऑफ सिक्रेशन उसे मीरोक्राइन कहते हैं, एक्राइन कहते हैं या इक्राइन कहते हैं। आते हैं एग्जाम्पल पर। मेरे बॉडी में ज्यादातर ग्लैंड्स मीरोक्राइन है, दिस इज हाउ आई यूज टू रिमेंबर। आप कैसे याद रखेंगे, मेजोरिटी ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, मैं मेजोरिटी वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑल नहीं कर रहा हूं। कुछ स्लाइवरी ग्लैंड ऐसे भी हैं जो अलग तरीके से सिक्रेशन करेंगे। मेजोरिटी ऑफ, नॉट स्लाइवरी, पार्डन मी, इट इज स्वेट ग्लैंड। मेजोरिटी ऑफ स्वेट ग्लैंड वो कैसे होते हैं बच्चों, मीरोक्राइन होते हैं। एक तो स्टेटमेंट होता है कि सारे स्वेट ग्लैंड हो जाते हैं, पर जब मैं अपने आर्म पीट के नीचे वाले स्वेट ग्लैंड का बात करूंगा, जिनको बोलेंगे एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड, वो नहीं होते हैं मीरोक्राइन, उनका मोड ऑफ सिक्रेशन कुछ अलग होता है। तो जितने भी आपके पास मेजोरिटी ऑफ स्वेट ग्लैंड है, एक्सेप्ट कौन सा नहीं होता, मैं मेंशन कर ही देता हूं यहां पर, एक्सेप्ट एक्सियल स्वेट ग्लैंड। तो जो एक्सियल स्वेट ग्लैंड है, जो भी स्वेट ग्लैंड बिलो द आर्मपिट होते हैं, उनके अलावा सारे के सारे कैसे होते हैं, डिफ्यूजन से। आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड कैसी होगी, दे वुड बी मीरोक्राइन। आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड कैसी होंगी, दे वुड बी मीरोक्राइन। आपकी स्लाइवरी ग्लैंड कैसी होंगी, दे वुड बी मीरोक्राइन। तो द स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया कि भाई मेरे बॉडी में ज्यादातर जो ग्लैंड है वो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिक्रेशन मीरोक्राइन होते हैं। मीरोक्राइन में कोई पार्ट लॉस नहीं होता है और जो सिक्रेशन वो डिफ्यूज अवे हो जाते हैं। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट, फिर आप इसको ऐसे समझे कि आपके पास ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये कुछ सेल्स, और सेल्स के अंदर सिक्रेटरी मटेरियल इकट्ठा होना शुरू हो गया। लेट्स से दिस इज सिक्रेटरी मटेरियल, और सेल का जो सिक्रेटरी मटेरियल है जब वो डिस्चार्ज होगा तो वो इस पार्ट के साथ डिस्चार्ज होगा। आई मीन टू से दिस पार्ट वुड बी लॉस्ट। तो सिक्रेटरी मटेरियल along with the apical part it would be lost like this. Let's say this is the apical part here and this is the secretory material. तो अगर secretory material apical part में इकट्ठा हो जाता है और फिर apical part along with secretory material discharge होता है, उसको बोलते हैं बेटा एपोक्राइन ग्लैंड। तो कोई भी आपसे पूछे एपोक्राइन का मतलब क्या हुआ, एपोक्राइन ग्लैंड कौन से ग्लैंड होते हैं, तो आप बताएंगे एपोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपने सिक्रेटरी मटेरियल को एपिकल पार्ट में स्टोर करते हैं और फिर एपिकल पार्ट लॉस्ट हो जाता है और जो बचा हुआ सेल है वो एक नई सेल से रिप्लेस हो जाता है। कौन सा एग्जाम्पल याद रखेंगे, एपोक्राइन ग्लैंड का जो क्लासिकल एग्जाम्पल होता है वो होता है हमारी मेमोरी ग्लैंड। तो हमारी जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें
लैक्टेटिंग फीमेल वो कैसी हो जाएंगी, आपकी एपोक्राइन हो जाएंगी। इवन जो स्वेट ग्लैंड बच गई थी, जिनके लिए वर्ड यूज किया था हमने एक्सियल स्वेट ग्लैंड, जो एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड है वो भी कैसी होती है आपकी, योर आंसर अगेन वुड गो एपोक्राइन। तो फर्स्ट एग्जांपल मीरोक्राइन, सेकंड एग्जांपल एपोक्राइन। थर्ड टाइप जब पढ़ना शुरू करेंगे, थर्ड टाइप वुड बी लाइक दिस। अगर आपके पास पूरा का पूरा सेल ही एज ए सिक्रेशन लॉस्ट हो जाता है, ये आपके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये आपके पास मॉडिफाइड सेल जो ग्लैंडुलर हो रही हैं, अब इन ग्लैंडुलर सेल के अंदर सिक्रेशन इकट्ठा होना शुरू हो गया, और सेल जब रिलीज होगी तो पूरी की पूरी सेल रिलीज हो जाएगी एज ए सिक्रेशन। लेट्स से दिस सेल इज रिलीज्ड along with the secretion। तो जब पूरा का पूरा सेल ही डिटैच हो जाए, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे बच्चों होलोक्राइन। होलो का मतलब भी आप समझते होंगे, होलो का मतलब ही कंप्लीट होता है। तो हमारे बॉडी में कुछ सिक्रेटरी सेल्स अपने सिक्रेशन वाया डिफ्यूजन रिलीज करती हैं, कुछ अपने सिक्रेशन में एपिकल पार्ट को ब्रेक कर देती हैं, और कुछ सेल ही कंप्लीट डिटैच हो जाती है एज ए सिक्रेशन। तो जब सेल कंप्लीट डिटैच हो जाए एज ए सिक्रेशन, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे बच्चे होलोक्राइन ग्लैंड। और कौन से होलोक्राइन होते हैं, तो जो ऑयल ग्लैंड होते हैं वो कैसे होते हैं, होलोक्राइन। लेट्स से आवर ऑयल ग्लैंड्स आर होलोक्राइन। इन माई आईज एट द कॉर्नर ऑफ माई आई लिड्स एंड आई लैशेज कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनका नाम होता है मिबोमियन ग्लैंड एंड ग्लैंड ऑफ जीस। जब कभी आगे चल के फिजियोलॉजी में आप उन ग्लैंड के नाम पढ़ेंगे तो आप बस इतना याद रख लेना कि हमने इनके बारे में कुछ प्राइमरी पढ़ा हुआ है। और क्या पढ़ा हुआ है कि अपने सिक्रेशन में कंप्लीट सेल को लॉस कर देती है। तो मिबोमियन ग्लैंड ऑफ ह्यूमन आई एंड ग्लैंड ऑफ जीस, ये दोनों ही आप ह्यूमन आई बॉल में पढ़ोगे आगे जाके बच्चों। ये भी कैसी होती हैं, ये भी आपकी होलोक्राइन होती हैं। तो 3 क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गए। पहला मोड ऑफ पोरिंग, दूसरा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, और तीसरा मोड ऑफ सिक्रेशन। अब एक और क्लासिफिकेशन मैं आपको बता देता हूं कि जो ग्लैंड है उसका डक्ट ब्रांच है या नहीं है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे, और सिक्रेटरी पोर्शन का शेप कैसा है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जो फाइनल क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं ये आपको हेल्प करेगा जब ह्यूमन फिजियोलॉजी को आप डिटेल में पढ़ रहे होंगे। और आप कभी पढ़ेंगे लेट्स से गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ रहे हैं, वहाँ पे लिखा देख लिया दीज ग्लैंड्स आर सिंपल बट दे आर हैविंग ब्रांच ट्यूबुलर सिक्रेटरी पोर्शन, तो आपको ऐसा नहीं लगा आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ लिख दी है किसी किताब में। आपको पता होगा कि इसकी बेसिक तो हम पढ़ के आए हैं अपने एनिमल टिश्यूज़ में, और एनिमल टिश्यू को पढ़ने का पर्पस भी यही है कि भाई जितना भी आपका हिस्टोलॉजी है उसके बेसिक्स हमारे क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। फाइनल क्लासिफिकेशन कम्स हियर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नया होगा शायद आप लोगों के लिए, तो आई वॉन्ट योर फुल अटेंशन हियर। पहले तो मैं बेसिक डायग्राम बना देता हूँ कि किसी भी ग्लैंड में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं डक्ट, और इस डक्ट से इसके सिक्रेशन बाहर जाएंगे, और जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं सिक्रेटरी पोर्शन। लेट्स से दिस एरिया इज द सिक्रेटरी पोर्शन। तो एक ग्लैंड के 2 पार्ट, एक पार्ट होता है सिक्रेटरी पोर्शन और दूसरा पार्ट होता है डक्ट। अब यहां पर ये डक्ट मैंने ना अनब्रांच बनाई है। डक्ट आपकी ऐसी भी हो सकती है, केस नंबर 2 जो डक्ट है उसके अंदर ब्रांचिंग भी हो सकती है। तो अगर डक्ट ब्रांचिंग वाली हो गई तो बोलेंगे कंपाउंड, और अगर डक्ट अनब्रांच रही तो बोलेंगे सिंपल। तो पहला क्लासिफिकेशन आइदर द डक्ट इज ब्रांच्ड और डक्ट इज अनब्रांच्ड। तो जो मैं शुरू करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद सिंपल ग्लैंड्स। अब देखो नाम भी कैसे रखेंगे, डेट्स वेरी इजी। अगर आप अपना फोकस ला रहे होंगे यहाँ पे, बहुत आसान सा है नाम रखना। ये आपके पास डक्ट वाला पार्ट है, और दूसरा मैं आपके पास बता दूं सिक्रेटरी पोर्शन। जो सिक्रेटरी पोर्शन है लेट्स से इट इज लाइक दिस, ये आपके पास स्ट्रेट ट्यूबुलर पार्ट है। तो जो सिक्रेटरी पोर्शन है वो ट्यूब लाइक है, वो स्ट्रेट है, तो नाम हो जाएगा सिंपल स्ट्रेट ट्यूबुलर ग्लैंड। और जो सिंपल स्ट्रेट ट्यूबुलर ग्लैंड होती है उसका क्लासिकल एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे ना एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका क्लासिकल एग्जाम्पल होगा क्रिप्ट ऑफ लिबरकून। कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो क्रिप्ट ऑफ लिबरकून है वो कैसा होता है, बाय देयर सिक्रेटरी पोर्शन, बाय देयर डक्ट, दैट इज सिंपल अनब्रांच्ड डक्ट, और सिक्रेटरी पोर्शन स्ट्रेट ट्यूबुलर होता है, क्रिप्ट ऑफ लिबरकून।
इसी चीज़ को आप ऐसे भी समझ लीजिए कि आपके पास ये डक्ट वाला पोर्शन था और जो सिक्योरिटी पोर्शन है वो स्ट्रेट ना होकर वो कुछ ऐसा हो गया। लेट्स से द सिक्योरिटी पोर्शन बिकम समथिंग लाइक दिस। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये एक ट्यूब है जिसको आपने कॉइल कर दिया है। जो सिक्योरिटी पोर्शन है वो अभी भी ट्यूबलर है, पर ट्यूब स्ट्रेट ना होकर कैसे हो गई है, कॉइल्ड हो गई है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इसका सिंपल सा नाम होगा सिंपल कॉइल्ड ट्यूबलर। देखो मैं सिंपल वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अनब्रांच्ड डक्ट है। तो मेरी जो स्वेट ग्लैंड होती हैं वो कैसी होती हैं, सिंपल कॉइल्ड ट्यूबलर। द एग्जांपल वुड बी स्वेट ग्लैंड। सिमिलरली अगर आपके पास जो सिक्योरिटी पोर्शन है वो कुछ ऐसा हो जाता है, ओके, जस्ट इमेजिन करें अपने दिमाग में इस ग्लैंड का नाम कि सिक्योरिटी पोर्शन में क्या है, आपके पास ट्यूब्स हैं और ट्यूब्स की ब्रांचिंग हो गई है लाइक दिस। तो सिक्योरिटी पोर्शन अभी भी सिंपल है और जब ब्रांचिंग हो गई तो नाम क्या हो जाएगा, सिंपल ब्रांच ट्यूबलर। इट वुड बी यूर सिंपल ब्रांच ट्यूबलर। और जो सिंपल ब्रांच ट्यूबलर होती है वो सेल कहाँ मिलेंगी, नो फन इन टेलिंग, हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो सिंपल ब्रांच ट्यूबलर होती है। ठीक है बच्चे। केस नंबर 4 ये हो सकता है कि आपके पास, ओके पे अटेंशन हियर, डक्ट अनब्रांच्ड है तो क्या कहेंगे, सिंपल। और जो सिक्योरिटी पोर्शन है वो कुछ ऐसा हो गया तो क्या नाम हो जाएगा इसका, सिंपल एल्वुलर। सिक्योरिटी पोर्शन कैसा हो गया, लाइक ए सैक, इसको सिंपल सेक्युलर भी बोलेंगे और सिंपल एल्वुलर भी बोलेंगे। हमारे बॉडी में ग्लैंड कहाँ होती है, तो आप आंसर रखेंगे पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ मेल। वैसे तो जो भी आपके पास टॉड होता है उसकी पॉइजन ग्लैंड और जो फ्रॉग की म्यूकस ग्लैंड है वो कुछ ऐसी होती है, पर ह्यूमन बॉडी में पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड ऑफ मेल आर सिंपल एल्वुलर। और एक लास्ट और देख लें आप सिंपल का, द लास्ट वन ऑफ सिंपल वुड बी कि अनब्रांच्ड डक्ट और आपके पास एल्वुलर है और ब्रांचिंग है, तो नाम कैसा आ गया, सिंपल ब्रांच्ड एल्वुलर। और मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप अपने ऑयल ग्लैंड को पढ़ोगे, आपके जो सीबेशियस ग्लैंड होते हैं या ऑयल ग्लैंड होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंपल ब्रांच एल्वुलर होते हैं। तो बच्चे इस क्लासिफिकेशन का एक पार्ट हमने पढ़ लिया है। आपने क्या पढ़ा कि अगर डक्ट में ब्रांचिंग नहीं है तो सिंपल, और जैसा सिक्योरिटी पोर्शन होगा वैसा नाम। इट कुड बी सिंपल स्ट्रेट ट्यूबलर, इट कुड बी सिंपल कॉइल्ड ट्यूबलर एंड सो ऑन। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पर रुक रहे हैं और जो भी पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे सम अदर डे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा क्लास, आपके कंसेप्ट भी समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच। सब लोग ख्याल रखें। क्लास इज ओवर।